करो, फिर डेवलप करो, फिर डिप्लॉय करो. That's what Architect plus SWE plus SRE means. SRE is Site Reliability Engineer. I'm also the organizer at Google Developers Group Bhopal. And in the past 1.5 years, I deployed about 20 plus microservices, which is a debatable number because the concept of microservice में आप numbers कैसे ला सकते हो? I could make granular and absolutely not easy to use microservice and increase that number. So that number carries no weight except the fact that कि थोड़ा experience है, ठीक है? And more about me at Mumford, ठीक है? So before we begin this session, I wanted you guys to cheer for the organizing team of Cloud Community Days. Right? It's really hard to organize a session that does not exist in a place like Bhopal. So that was the cheers for. Now DevFest is coming. DevFest is just like Cloud Community Days but for all developers. ठीक है? ठीक है, cheers for that. ठीक है. Now getting back to the topic, DevFest. And this is what I have thought my DevFest team would look like ideally. थोड़ा marketing वाले, थोड़े value management वाले, थोड़े sponsors, और थोड़े generic management, organizers, leads. सही है? Sorted ऐसे ही होना चाहिए. But 3 months before the DevFest, we are like सब figure out हो रहा है धीरे धीरे. So we don't have any marketing, we don't have any management. Venue ढूंढना बहुत ज़रूरी है और sponsors ढूंढना बहुत ज़रूरी है. ठीक है? Cut to 1 month before. Venue थोड़ा सा final हो गया, sponsors थोड़े से आ गए, management ठीक ठाक हो रहा है और marketing जोरों शोरों से चालू. सब register करोगे DevFest, ठीक है? हाँ? ये this is 1 month before, 7 days before. When you sorted तो कोई टीम नहीं बची उसकी, पर मार्केटिंग बहुत ज़्यादा करनी है. स्पॉन्सर्स के लिए 1-2 लोग हैं अभी भी who are looking out for, and management is the most important thing that is going on. ठीक है? Understandable, right? But what happened to my ideal team, yeah? I was supposed to be equal towards everyone. But is that the case? नहीं, ज़रूरत नहीं है. 3 month पहले मार्केटिंग क्या करूँगा मैं? आज DevFest अब like we are going to hopefully announce today. इसके 10 दिन पहले तक के did you care about it? नहीं, CCD हो रहा है, it's good, right? 7 days before, I definitely need marketing. I want every developer to be involved, right? So why do I need a venue or sponsors वाली team? ठीक है? Sorted है? Is it logical? Does it make sense? Yes? ठीक है. So I think जब DevFest और CCD हो रहा है, everybody is talking to everybody. You have some friends in the organizing team who are in marketing or graphic designing, but you want a ticket. कौन लोग हैं जिनके पास टिकट नहीं थी और किसी से मिली या आ गए या लकीली मिल गई टिकट और आ गए? This guy gets this folks over here. ठीक है. It's chaos. If like तुम चाह रहे हो बात कर रहे हो, 10 ग्रुप है, कुछ दोस्तों से बात हो रही है, ऑर्गेनाइजर्स को DMs आ रहे हैं, Instagram पे DMs आ रहे हैं, emails आ रहे हैं, LinkedIn पे emails आ रहे हैं. It's chaos. Thankfully, we have a management team, which is what our organizers did. एक management team है, आप सीधे वेबसाइट पे जाओ, bhopal.cloudcommunitydays.in, सब लोग वहीं से रजिस्टर हुए थे, सही है? वो नहीं होता तो फिर क्या करते? मेरे को मैसेज आता है, इनको मैसेज आता है, क्रू को मैसेज आता है, राइट? तो thankfully, thank God we have management team, thank God we have a website, सही है? तो from this chaos, we went to a very simplified thing. समझ में आ रहा है? Does it make sense? I think it makes sense. वेबसाइट कौन कौन बना सकता है? I think you get it. क्यों important है वो? I see no difference between this and microservices, and I'll show you how. I'll not change any picture. I'll just change the label. This is a monolith, which is not a microservice. इसमें क्या होता है? You have products, orders, users, notifications, सब है, ठीक है? Make sense?
This is what happens on हर घर iPhone योजना. दो दिवसीय हर घर iPhone योजना में जिसने भी. Ideally, it should have been like this. सब कुछ important है. User sign up ही नहीं कर पा रहा तो कैसे order करेगा? Make sense? But microservice में, on a good day, इतने orders आ रहे होते हैं, नहीं? But सबको iPhone चाहिए तो product एक दिन खोल के तो सभी देख रहे हैं, है ना? सब देख रहे खोल के, ठीक है? Notification भी इतने नहीं जा रहे क्योंकि कोई order ही नहीं कर रहा और sign up भी कम ही हो रहा है, ठीक है? What happens on Big Billion Day? सब order कर रहे हैं, ढेर सारे notification जा रहे हैं, support को messages जा रहे हैं, प्रोडक्ट तो लोग देख ही रहते हैं और ज़्यादा देख रहे हैं. मेक सेंस? दिस इज वेयर क्लाउड पॉप्सअप्स कम्स इन. अब ये चार अलग चीज़ें हैं. अब मैंने देखो यहाँ कोई एरो नहीं बनाया. हाउ आर दे टॉकिंग टू ईच अदर? इट बिकम्स समथिंग लाइक दिस. आई प्रोबेबली हैव अ पिक्चर. आई थिंक मैंने इसको सीधे ही डाल दिया. बट इफ क्लाउड पॉप्सअप वाज नॉट देयर, it would have been chaos. पर iPhone नहीं मिलता किसी को. Make sense? क्यों? Because अभी जैसे नेट स्लो था, ठीक है, नेट फास्ट भी हो तो it at least takes a second or 500 millisecond to make a request. अब हर सर्विस एक दूसरे को बोल रही है, देखो ऑर्डर्स वालों प्रोडक्ट का ऑर्डर आ गया है, ऑर्डर वाले बोल रहे हैं नोटिफिकेशन वालों ईमेल भेजो, SMS भेजो, लिंक्डइन पे DM करो, ऑर्डर आ रहा है, ठीक है? ऑर्डर वाले वेयर हाउस को बोल रहे हैं कि ऑर्डर आ रहा है. ये कितनी बातें हो रही, कितनी चैटर हो रहा है, किसको आइडिया है? अब कल गलती से ऑर्डर वालों ने काम बंद कर दिया, अब क्या होगा? नोबडी नोस, किसी का ऑर्डर नहीं आ रहा. यहाँ से एक लेयर गायब भी हो गई बातचीत की. कट टू अ माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर जहाँ पे जितनी ज़रूरत है उतना ही स्केलिंग हो रही है. जिस दिन ऑर्डर ज़्यादा हुए उस दिन ऑर्डर सर्विस चलेगी, जिस दिन प्रोडक्ट ज़्यादा दिखाए जा रहे हैं उस दिन प्रोडक्ट की सर्विस चलेगी, जिस दिन नोटिफिकेशन ज़्यादा जा रहे हैं उस दिन नोटिफिकेशन की सर्विस ज़्यादा चलेगी, ठीक है? अब ये क्लाउड पॉप्सअप क्या है? वाई इज दिस हियर? मैं तो माइक्रो सर्विसेज बता रहा था, राइट? तो पॉप्सअप इज बेसिकली द कम्युनिकेशन लाइक चैनल बिटवीन दिस सर्विसेज, ठीक है? प्रोडक्ट, ऑर्डर्स, यूजर्स, ठीक है? इन सब के बीच में बातचीत करने के लिए कोई मीडियम चाहिए. अगर ये एक दूसरे से बात करेंगे तो कभी कोई कोऑर्डिनेटेड ही नहीं रह पाएगा. मैंने एक क्रू मेंबर को बोल दिया कि आई नीड दिस एंड दे आर ऑफ टू गेट इट, और फिर मैंने दूसरे को भी बोल दिया यार आई रियली नीड इट, और वो दोनों एक ही चीज़ कर रहे हैं और पता चला दोनों ही वो चीज़ ले और मुझे एक ही ज़रूरत थी. नाउ द अदर वंस एफर्ट एंड दे थिंक इज अ वेस्ट. मेक सेंस? यानी ये कोऑर्डिनेशन चाहिए. इफ़ यू वुड हैव नॉट बीन हियर, अगर तुम्हें ईमेल्स नहीं आते, कैसे आते तुम यहाँ तक के, राइट? आधों को वेन्यू नहीं पता होता, आधों के पास टिकट नहीं होता. वी ऑल नीड सम कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन अस, राइट? राइट? तो पॉप्सअप फॉर माइक्रो सर्विसेज इज दैट चैनल, ठीक है? आई स्किप्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो सर्विसेज एंटायरली, तो ताकि मैं सीधे प्रैक्टिकली दिखा पाऊँ. But even like any of you are not able to grasp this, you will be able to understand it better. If you realize, थोड़ा सा contrast सही नहीं होगा, there is all gray area here. It's all gray. It means it is a part of the whole big thing. एक लैंग्वेज में आपने लिख दिया, एक एक्सप्रेस ऐप में, एक फ्लास्क ऐप में आपने लिख दिया, and it's all running from there. I didn't use that in the microservices. I've left out space, which means कि आप प्रोडक्ट फ्लास्क में पाइथन में लिख सकते हो और ऑर्डर्स वाली सर्विस Node.js जावास्क्रिप्ट में लिख सकते हो, ठीक है? ओके, हाउ डज इट मेक सेंस? ये लोग बात से कैसे करेंगे एक दूसरे से? पॉप्सअप को फ्लास्क भी समझ में आता है, पॉप्सअप को Node.js भी समझ में आता है, और इसलिए नहीं क्योंकि पॉप्सअप को बहुत लैंग्वेजेस आती है और वो भयंकर कोडर है. पॉप्सअप बातें करता है जेसन में. जेसन सबको समझ में आता है,
अच्छा मुझे एक बार शो ऑफ हैंड से बताओ, हु वर्क्स इन पाइथन, हु वर्क्स इन नोड.जेएस, हु वर्क्स इन गोलैंग, सम पीपल। जेसन सबको समझ में आता है, लेकिन जेसन सबको समझ में आता है। सो इफ आई जस्ट मेक दिस कम्युनिकेशन इन जेसन, सब बात कर लेंगे, ठीक है। किसी को गुजराती आती है, किसी को मराठी आती है, हिंदी ऑलमोस्ट कॉमन लैंग्वेज है, इंग्लिश ऑलमोस्ट कॉमन लैंग्वेज है, ठीक है। बाहर जाओ अब्रॉड में, यू कैन टॉक टू कॉमन लैंग्वेज, भले से यू कम फ्रॉम अ डिफरेंट कल्चर, राइट। PubSub मेक्स दिस क्रॉस सर्विस कम्युनिकेशन ईजी, ठीक है। इट्स वेरी मैजिकल। नाउ यू कैन हैव अ पर्सन हु इज promoting Golang all the time like me, and you can have a Pythonista who is not ready to go away from Python, and they both can work in the same team. एक को बोल दो प्रोडक्ट बनाओ, एक को बोल दो ऑर्डर बनाओ। बातचीत कैसे होने वाली है? जेसन से। अब सब तो मतलब चैनल है। इट्स लाइक सेइंग के ईमेल तो सब कर रहे हैं, बट उसमें लिखा क्या है? इंग्लिश लिखिए ना, वैसे इंग्लिश इज द लैंग्वेज, ईमेल इज द मीडियम, PubSub is the medium, JSON is the language, and it's not entirely true. Protobuf, जो कि gRPC का भी बेस है, वो भी इसमें सपोर्ट होती है, but on a very higher level JSON is supported. So अब ये कम्युनिकेशन का जो गैप है, ये किसने फिल कर दिया? PubSub ने। अब बिग बिलियन डे के दिन क्या हो रहा था कि ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, यूज़र साइन अप कम कर रहे होंगे फॉर सम वियर्ड रीजन, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, हो सकता है उस दिन साइन अप ज़्यादा, इनफैक्ट सभी ज़्यादा होगा, बट लेट्स अज्यूम कि यूज़र साइनअप कम है बट ऑर्डर ज़्यादा है, एग्जिस्टिंग यूज़र बहुत खर्चा कर रहे हैं। तो दिस इंडिविजुअल पाइथन और गो और जावास्क्रिप्ट सर्विस कैन स्केल। वो स्केल कैसे करती है, वी कैन टॉक अबाउट दैट, दिस इज़ नॉट व्हाट दिस टॉक इज़ अबाउट। माइक्रो सर्विस काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इफ़ यू वांट टू लर्न मोर वी कैन ऑब्वियसली टॉक ऑफलाइन ऑन दैट। बट ऐसे अज्यूम कर लो कि जैसे मार्केटिंग वाला आइडिया था, some days the venue team is on high alert, some days marketing team was on API सब बनाते हैं। PubSub is the medium, JSON is the language, ठीक है। ये लास्ट वाले पॉइंट से कुछ कि हम लोग इमीडिएटली ये पता लगा सकते हैं कि अगर वैकेंसी है कि नहीं सीट की। मेक सेंस? सब कोऑर्डिनेटेड है यानी, मेक सेंस, ठीक है। द बेनिफिट्स ऑफ PubSub यू हैव सीन, इंडिपेंडेंटली स्केल कर लो, क्योंकि फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आपकी एक सर्विस किस में बनी, आपकी एक सर्विस किस में बनी, बातें किस में करनी है, जेसन में करनी है, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। सिंपलर कम्युनिकेशन कैसे होगी? मुझे सिर्फ वेबसाइट चलानी आनी चाहिए। मुझे नोड.जेएस आना चाहिए क्या गो वाले को? क्या नोड.जेएस वाले को गो आना चाहिए? गो वाले को नोड.जेएस आना चाहिए? क्या आना चाहिए? जेसन आना चाहिए। जेसन तो सबको आती है ना? आती है, ठीक है। रियल टाइम होता है, ऑलमोस्ट रियल टाइम होता है। आई हैव नॉट रिटन द वर्ड ऑलमोस्ट, बट इट्स ऑलमोस्ट रियल टाइम। यू कैन कॉन्फ़िगर इट टू बी ऑलमोस्ट रियल टाइम। जैसे ही मैंने वेबसाइट पे टिकट खरीदी, उसी टाइम मुझे पता चल जाएगा कि वो कंफर्म हो गई कि दैट्स द काइंड ऑफ पावर इट हैज़। एंड सेपरेशन ऑफ कंसर्न विच इज़ अक्रॉस टीम्स लिखा है बाय द वे। सेपरेशन ऑफ कंसर्न समझ में आता है, इट्स अ वेरी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, वी डोंट हैव टू टॉक अबाउट इट, बट सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स किसी को समझ में आता है? If anyone wants to raise their hand, नहीं? Separation of concerns, तो कोई बड़ा टॉपिक नहीं। Separation of concerns means तुम तुम्हारा देखो, हम हमारा देखेंगे। हमको मार्केटिंग करनी है, मार्केटिंग अच्छे से करेंगे, तुम्हें स्पॉन्सरशिप लानी, तुम स्पॉन्सरशिप लाओ। मैं तुम में दखल नहीं दूंगा, तुम मेरे काम में दखल नहीं होंगे। आ गया? ठीक है, यही है। पर एट द एंड ऑफ द डे कम्युनिकेशन करना है, वो किस में कर रहे हैं, किसके थ्रू कर रहे हैं? सिंपल है। मैं मेरा कुछ भी काम कर लूँ, एट द एंड ऑफ द डे आई विल गिव यू द रिजल्ट एंड यू विल अंडरस्टैंड इट, नो मैटर हाउ आई वर्क। यूज केस ऑफ PubSub एक माइक्रो सर्विस का तो बना ही दिया। जो चीज़ बोली मैंने, इवेंट बस, दैट इज व्हाट द थिंग इज, लाइक द कॉमन कम्युनिकेशन चैनल। डेटा स्ट्रीमिंग में भी ऑन अ ऐड टू कार्ट बटन, बट यू डोंट बाय द प्रोडक्ट, फिर भी इंस्टाग्राम पे दिखने लग जाता है। आजकल तो मियरली बात करने से ही वो हर जगह दिखने लग जाता है। मेरा कोवर्कर है, उसको तो डर लगता है बात करने में, वो गलती से किसी के साथ बात भी के रजिस्टर का बटन ही नहीं दिख रहा है। हो सकता है वो इतना नीचे का कोई जा ही नहीं रहा है, ठीक है। अब सब लोग रजिस्टर कर रहे हैं बट किसी का टिकट ही नहीं आ रहा है। तो मुझे पता है कि फ्रंट एंड से तो हो रहा है, बैक एंड में कुछ दिक्कत है।
मेक सेंस? पैरेलल प्रोसेसिंग तो समझ में आ गई। पैरेलल प्रोसेसिंग का सिंपल सा फंडा, ऑर्डर प्लेस करा, क्या क्या चीज़ें होती है, पेमेंट प्रोसेस होती है, ईमेल जाता है, वेयर हाउस डिलीवरी वालों को भी मैसेज जाता है कि ये ऑर्डर बुक हो चुका है, अब स्टॉक को कम कर दो। 3 चीज़ें हो रही है। अब ये 3 चीज़ें करने के बाद अगर तुम्हें फाइनली सक्सेस मैसेज दिखता तो कितना वेट करना पड़ता? बाय नाउ क्लिक करा, 2 घंटे बाद आया, हाँ भैया हो गया। बट अपन को कैसे दिख जाता है? इंस्टेंटली। कैसे? बाय नाउ आ गया आईफोन, डिलीवरी डेट आ जाती है ना? दैट्स व्हाट पैरेलल प्रोसेसिंग इज। उसने एक को बोल दिया ये कर लो, एक को बोल दिया ये कर लो, एक को ये बोल दिया। इसका काम है क्या? नोटिफिकेशन भेजना। नहीं भेजेगा, वो बोल दिया, वो करता रहेगा। उसके जब वो कर देगा मुझे पता चल जाएगा। तो दिस इज़ व्हाट आल्सो हैपेंस इन पबसब। मैंने उस सर्विस को बोला ये कर दो, मैंने ये नहीं बोला कैसे करोगे, सिर्फ क्या बोला, ये कर दो। मार्केटिंग वालों को बोला, मैं स्पॉन्सर वाला हूँ, कि एक अच्छा सा फोटो भेज दो डेफरेस का। उन्होंने भेज दिया। कहाँ बनाया है? फोटोशॉप, कैनवा, आई डोंट केयर, है ना? आउटकम से मैटर करता है। तो पैरेलल प्रोसेसिंग में ये हो जाता है कि जब वो कर देगा वो मुझे बता देगा, ताकि मैं अपनी चीज़ें अपडेट कर दूँ कि हाँ मेरी स्पॉन्सरशिप की डील रुकी हुई है बिकॉज मार्केटिंग से एक फ़ोटो नहीं आया, वो भेज देंगे, मैं आगे प्रोसेस कर दूंगा। मैं वेट नहीं करूँगा, मैं अपना काम और कर रहा हूँ, मेरे पास और भी काम है। मेक सेंस? पैरेलल प्रोसेसिंग। अब आता है क्लाउड पबसब। क्यों क्लाउड पबसब निकाला? और मैं पबसब ही क्यों बोल रहा था अभी तक, कि क्लाउड क्यों यूज़ नहीं कर रहा था? पबसब इज़ नॉट अ प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी, ओपन सोर्स भी है। काफका का नाम किसी ने सुना है? काफका का सुना है? SQS, AWS SQS, SNS, सिंपल क्यू सर्विस, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस, ठीक है। काफका सुना है, ये सुना आई थिंक। इसके बाद तो क्लाउड पबसब भी है। उसके अलावा मेजर प्लेयर्स RabbitMQ ऐसे मैसेज किया हुआ, बट ठीक है, सुना है ना? क्लाउड पबसब, आई लाइक इट द मोस्ट एंड आई यूज इट फॉर माई माइक्रो सर्विसेज सिंपली बिकॉज इट्स मैनेज्ड बाय गूगल। तो वो जो हेडेक है खुद से कॉन्फ़िगर करने का, इट्स गॉन। इट्स वेरी चीप टू यूज़ एंड इट हैज़ मैनी बेनिफिट्स। जैसे एग्जैक्ट वंस डिलीवरी, पेमेंट हो गई, आईफोन भेज दो, मैंने ऑर्डर वालों को भेजा। पेमेंट हो गई, आईफोन भेज दो, मैंने ऑर्डर वालों को भेजा। दो चले गए, 2 आईफोन पहुंच जाएंगे, मेरा तो घाटा हो गया जस्ट बिकॉज मैंने उसको गलती से 2 बार बोल दिया। समटाइम्स यू कैन नॉट अफोर्ड दैट, लिटरली कैन नॉट अफोर्ड दैट। तो उसको कॉन्टेक्स्ट पता है, तो दैट्स व्हाई ऑर्डर डिलीवरी इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। एक्सपोनेंशियल रीट्राई पॉलिसी विद दैट लेटर Q, oh my God, we'll break it down. Eat a whale one bite at a time. एक्सपोनेंशियल रीट्राई पॉलिसी। पेमेंट हो गई है, व्हाट्सएप पे एक टिक, बंदा ऑफलाइन है बट मैसेज पहुंचाना है, थोड़ी देर से ट्राई करता हूँ, 5 मिनट बाद पेमेंट हो गई है, सिंगल टिक, चलो ठीक है, पिक्चर देख रहा है, आधे घंटे बाद पेमेंट हो गई है, अभी भी ऑफलाइन है, कहाँ है भाई? ठीक है, 3 घंटे बाद बोलता अरे पेमेंट हो गई है, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। 1 दिन बाद बोला फिर मैंने, भाई पेमेंट हो गई है, हाँ भाई ठीक है, एक्नॉलेज। तो ये एक्सपोनेंशियल रीट्राई। अब हर 5 मिनट में बार बार उसको बोलने का क्या मतलब है? पहले 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 3 घंटा, 1 दिन, 7 दिन, मतलब बीच में 3-5 दिन भी हो सकते हैं। बट दैट्स व्हाट एक्सपोनेंशियल रीट्राई मीन्स। मैसेज भेजना ज़रूरी है, उसने तो पेमेंट कर दी, उसको लग रहा है आईफोन आ रहा है, पता चला जिस दिन आईफोन आना चाहिए था उस दिन तो मैसेज ही नहीं पहुंचा, तो रीट्राई तो करना पड़ेगा। अब ऑर्डर वालों के पास बहुत ज़्यादा लोड है अभी काम का, तो हो सकता है उनको मैसेज नहीं मिला, तो अपन रीट्राई करते हैं। डेड लेटर Q क्या है? अब उसने 7 दिन बाद भी मैसेज नहीं देखा, जॉब ही छोड़ दी उसने, फिर क्या करोगे? कंज्यूमर ने तो पेमेंट करी है, उसको तो चाहिए। तो डेड लेटर Q इज जस्ट द क्यू ऑफ ऑल योर डेड मैसेजेस जो कि पहुंचा ही नहीं जा सके। तो जब दूसरे बंदे को हायर कर लिया ना, ये सारे मैसेज पहुंचा देना, तो वो सब काम कर देगा। मेक सेंस? मेक सेंस? यस, सही है। और सबसे इजी चीज़, आई डोंट हैव टू वरी अबाउट स्केलेबिलिटी, इट्स फुली मैनेज्ड बाय गूगल। 1 मिलियन मैसेजेस पर सेकेंड, तो वो ऐसे ही पोस्ट करते हैं। इट्स ऑब्वियसली मोर स्केलेबल देन दैट। और ऑटोमेटिकली अगर आज 1000 लोग हैं, कल 1 लाख लोग हैं, एंड इट कैन हैपन, तो मेरा माइक्रो सर्विस तो स्केल कर जाएगी।
मेरे को पता है कि कल मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं, आज है तो कल वाले बंदों को मैं आज ले आऊँगा, बट बीच में ऑर्गेनाइजर तो एक ही है, डेफेस तो गया फिर नहीं, इसलिए तो क्रू रखते हैं. ऑल ऑफ देम आर मैनेजमेंट, दे कैन हेल्प कोऑर्डिनेट दिस होल बिग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड आई कैन नॉट रिलाई ऑन समथिंग दैट आई हैव कॉन्फ़िगर्ड. तो मैं गूगल को बोल देता हूँ, दे कैन स्केल इट इंस्टेंटली और मैनेज्ड है, आई डोंट हैव टू वरी. Now how does Cloud PubSub work? This is थोड़ा सा टेक्निकल. तो पेमेंट हो गई है, कोई इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पेमेंट प्रोसेस, ये टॉपिक हो गया. किसने बोला? मैं हूँ, जो प्रोडक्ट सर्विस थी, मैंने बोला पेमेंट प्रोसेस हो गया. तो आई एम द पब्लिशर, ठीक है. पेमेंट प्रोडक्ट, पेमेंट प्रोसेस, ये टॉपिक है. अब इसको सुनने वाले जितने लोग हैं वो सब सब्सक्राइबर है. कौन कौन सुनेगा? नोटिफिकेशन सर्विस, उसको SMS भेजना है, वेयर हाउस वाली सर्विस, क्योंकि उन्हें एक आईफोन रखना है गाड़ी में, है ना. डिलीवरी वाली सर्विस, उनको चाहिए कि उस दिन डिलीवरी बॉय अवेलेबल हो, ठीक है. सिंपल से ये पब्लिशर सब्सक्राइबर, पब्लिशर सब्सक्राइबर. और ज़्यादा इजी एग्जांपल, यूट्यूब चैनल्स, सब्सक्राइबर्स. मैं पब्लिश करता हूँ, तुम लोग सब्सक्राइब करके बैठो. अब मैंने पब्लिश करा, तुमने बेल आइकन दबाई है, और जो लाइव चल रहा है उन्होंने भी दबाई होगी होपफुली, तो उनके पास नोटिफिकेशन गई होगी, उनके पास ही गई, सबके पास तो नहीं गई. यूट्यूब तो इतना बड़ा 2 बिलियन उनका है, बिकॉज दे हैव सब्सक्राइब्ड. किससे सब्सक्राइब्ड? कि न्यू वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आ जाए. दैट्स द टॉपिक, दीज आर द सब्सक्राइबर्स, आई एम द पब्लिशर. मेक सेंस? ठीक है. इसको मैंने Node.js में करने का एक सिंपल सा तरीका बताया. ये बस एक फ्लो डायग्राम है, हाउ इट वर्क्स. बीच में एक्चुअली गूगल को मैसेज स्टोर भी करना पड़ता है, क्योंकि पहुंचाया ही नहीं तो फिर मैं छोड़ तो नहीं दूंगा. मेरे को बार बार पहुंचाना है मैसेज आपका, तो मैं स्टोर कर लेता हूँ. ये एक तरीका है. इट्स वेरी सिंपल, बाय द वे, इट्स वेरी सिंपल. यू कैन जस्ट सी, आई एम जस्ट इम्पोर्टिंग एंड देन क्रिएटिंग द टॉपिक, द क्रिएटिंग द सब्सक्रिप्शन. मतलब आप लोगों ने सब्सक्राइब करा तो वो सब्सक्राइबर अब आप बन गए. मेक सेंस? पब्लिशिंग द मैसेज, कि नई वीडियो आ गई है. इट्स वेरी इजी. आई जस्ट यूज द टॉपिक्स नेम, जो कि चैनल का नाम हो सकता है, एंड आई जस्ट पब्लिश द मैसेज, जो कि हो सकता है वीडियो की आईडी हो. मेक सेंस? मेक सेंस? थोड़ा सा आई नो, बट ऊपर लेवल से. Node.js नहीं आती, इट्स टोटली ओके. इट्स अवेलेबल इन ऑल लैंग्वेजेस होपफुली. एंड यू आर द सब्सक्राइबर, यू आर लिसनिंग फॉर न्यू मैसेजेस, न्यू वीडियोस. जिस दिन आ जाएगी वी विल इंस्टेंटली प्ले. ठीक है. The code samples can be, taken down later as well. ये सब docs से ही उठाए मैंने. I have not written them down. This is the example of what I was telling you. Order service ने order created बोला, कुछ डेटा भी भेजना है. किसका ऑर्डर है? तो उसने लिखा ऑर्डर नंबर 1 है, प्रोडक्ट नंबर 4 है, इस पिन कोड पे जाएगा, इस फ़ोन नंबर पे जाएगा. फ़ोन पे कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं, आइडिया का कस्टमर केयर नंबर है. Now the nitty-gritty, and this is just 5-minute thing. ये context set करना 90% टाइम लग जाता है, just to tell you the nitty-gritty. और ये thought experiment, ठीक है. I've listed down some terms here. I'll tell you, और सिर्फ 5 minutes में ये cover हो जाएगा. You just have to stay with me. Is everyone alive? ठीक है. Ordering सबसे खतरनाक चीज़ है. अगर ऑर्डर करनी है, and now imagine at the level of 1 million messages per second, per day नहीं, उसमें ऑर्डरिंग करना इज़ वेरी कॉस्टली, बिकॉज यू हैव टू असाइन एन ID टू एवरीवन, और वो ID किसी और को नहीं जानी चाहिए. 1 मिलियन में 1 सेकंड में आपको ढूंढना पड़ेगा वैसा. मेक सेंस? इट्स अ चैलेंज. मेक सेंस? आज मैं नंबर 1 हूँ. IRCTC में जो होता है कि अपन दोनों ने साथ में बुक कर ली, अब किसको मिलेगा पहले? इट्स अ चैलेंज. किसी ने कभी देखा है कि 2 लोग एक ही सीट पे आ गए हो, सेम डेट सेम ट्रेन? नहीं देखा, मोस्टली नहीं होगा. मैंने भी नहीं देखा. होपफुली जिस दिन पता चले मुझे भी बताना. आई विल टेल देम आउट ऑफ सब. ठीक है. बट हाउ इज इट पॉसिबल? बिकॉज दे हैव सॉल्व्ड ऑर्डरिंग. सिमिलरली दे हैव सॉल्व्ड ऑर्डरिंग एज वेल. इट्स जस्ट आपकी एफिशिएंसी कम हो जाती है. आपको डिसाइड करने में टाइम लगता है कि ऑर्डर नंबर क्या देना है. मेक सेंस? पुल और पुश, ये थोड़ा टेक्निकल है, वी कैन स्किप दिस. बट इसमें बेसिकली डिसीजन ये लेना होता है कि
डू यू वांट टू रिसीव दिस मैसेज 10 सेकेंड्स बाद या इंस्टेंटली? और ये सोचना पड़ता है, ऑब्वियसली इंस्टेंटली चाहिए, बट इट्स नॉट ऑलवेज द केस. इंस्टेंटली में यू ऑलवेज हैव टू बी अवेलेबल. पुल में यू कैन जस्ट पोल इट. पोल अगर आपको पता हो तो यू कैन रीड मोर अबाउट इट. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. थोड़ा सा टेक्निकल डिटेल है इसलिए आई स्किप ओवर इट. Cost versus latency. The term you'll hear in every talk. Cost. We have to minimize cost. क्योंकि फालतू में कुछ रिसोर्स यूज हो रहा है, it's not good. Latency पता है किसी को? Latency. Delay. Right? ओहो, अच्छा. PUBG वाले. हाँ. समझ गया. Thank God. अब the way PubSub is made, या तो आपकी कॉस्ट कम होगी या तो आपकी लेटेंसी कम होगी. कैसे? पेमेंट हो गया 10 बार बोलो, इससे अच्छा मैं एक बार बोल दूंगा कि ये 10 लोगों का पेमेंट हो गया. मेक सेंस? मैं एक बार में बोल दिया कि ये 10 लोगों का पेमेंट हो गया. मेक सेंस? बट जब तक कि 10वें का नहीं हो जाता मुझे रुकना पड़ेगा बोलने के लिए, क्योंकि मैं 10 लोगों का ही बोल रहा हूँ, तो समय लगा. बट अगर मैं इंस्टेंटली बोल देता तो वो क्या है, कॉस्ट बढ़ जाती है उससे, बिकॉज उसको काम करना पड़ रहा है इंस्टेंट के लिए. तो लेटेंसी वर्सेस कॉस्ट समझ आया है ना? इट मेक सेंस. या तो मैं वेट करूँ 10वें के लिए, या तो इंस्टेंटली एक का कर दूँ. ठीक है. क्लाउड तो बोलेगा कि यार आपने एक मैसेज भेजा उसको तो पैसे लगेंगे, आप 10 में एक को भेज दो तो भी चलेगा. एक्नॉलेजमेंट डेडलाइन, ये सबसे बेकार है. इसकी वजह से ही मैंने टॉक ये रखी थी कि मेरे को इस पर बोलना है. एक्नॉलेजमेंट डेडलाइन इज कि मेरे पास मैसेज आया, पेमेंट हो गई, मैं उसकी प्रोसेसिंग करूँगा और बोल दूँगा हाँ ठीक है मैंने इसको प्रोसेस कर लिया. वो भाई वेट ही नहीं करते, वो निकल जाते हैं दूसरे को बोलने, अरे पेमेंट हो गई क्या करना है, अब मैं प्रोसेस कर चुका हूँ. तो ये एक प्रॉब्लम आती है कि आपने अगर एक्नॉलेजमेंट डेडलाइन बहुत छोटी रख दी तो इट विल नॉट वेट फॉर यू टू प्रोसेस दी होल थिंग. ठीक है. डुप्लीकेशन रेट, ये भी एक प्रॉब्लम है. आपने 2 ही मैसेज 2 बार भेज दिए, एक मैसेज जो होना चाहिए था, तो यू हैव नाउ एसेंशियली कॉस्ट योरसेल्फ सम रियल बिग अमाउंट. ठीक है. I'll come back. ये 5 चीज़ें थोड़ा सा ऊपर से है, बट डिड यू गेट द लॉजिकल पॉइंट ऑफ इट? यस, सही है. नाउ दिस इज अ वेरी गुड कोट. जब भी आपको बड़े की सिस्टम बनाने, यू विल ऑलवेज कम बैक टू दिस कोट कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट ट्रेड ऑफ्स. या तो कॉस्ट बचाओगे या तो लेटेंसी बचाओगे. समटाइम्स वेबसाइट्स आर स्लो बट देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट. ठीक है. मेरे को पढ़ना पड़ेगा क्या? नहीं है ना? सॉर्टेड है? ठीक है. आई होप यू मेक गुड ट्रेड ऑफ्स फॉर योर करियर. थैंक यू. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस एंड आंसर्स अबाउट द टॉक यू कैन जस्ट आस्क मी राइट नाउ. एनी क्वेश्चंस? सही है. समझ में आया सब कुछ? थम्स अप. यस. थैंक यू सो मच.